Hello dear students, today we will discuss what are the reversible process. Reversible process are those processes which can be retraced to its initial states by reversing the controlling factor. Reversible process have some conditions. First condition, the process should be very slow. Process should be very slow so that the equilibrium condition is maintained. Equilibrium condition, mechanical, thermal or chemical equilibrium. Second should be, the system should be free of friction, viscosity, inelasticity and electrical resistance, so that energy not used to control friction, viscosity, inelasticity. There are many more examples for a reversible process, but in practical condition, reversible process cannot be achieved. For example, we can say that an ideal gas allowed to expand slowly is a reversible process. Working of Carnot heat engine is a reversible process. Next, irreversible. Irreversible are those processes which cannot be retraced to initial state by reversing the controlling factor. Many more examples are there. Or practical, all the processes are irreversible process. We can say that work done against friction, rusting of iron, and many more. Next, controlling. So next है work, conversion of work into heat and heat into work. Heat and work both are associated with transfer of energy. Transfer of energy. If we are doing work on a system, then we are giving energy to that system. If work done by the system, then that system is giving energy. Means the work done क्या है? Transfer of energy है by all the means except difference of temperature. If energy is transforming from one system to another due to temperature difference, then that is called heat. That what is, if we rubbing our hands, what will be observed? Our hands will be heated, warm up. We are doing mechanical work by rubbing, or from which what is heat is produced. Or what is the efficiency of a heat engine? Efficiency is, it means performance of that engine, how much ability to work out. और efficiency को हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क डिवाइड बाय हीट इनपुट, कि कितनी एनर्जी देकर कितना वर्क डन हुआ है, उसका जो रेशो है वो क्या है? एफिशिएंसी. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया कि जो हीट है वो नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. If we giving dq amount of heat to a system, then what it will be do? Del W is the work done
और डी यू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, कि जो हमने डी क्यू हीट सिस्टम को दी है उसने क्या किया, डेल डब्ल्यू वर्क डन में यूज होगी और कुछ जो बची हुई थी उसने उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसने वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशन है इसकी, पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये तो कह दिया कि हीट ट्रांसफ़र होगी, पर किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो गया था, कि हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ट्रांसफ़र हो रही है या हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र हो रही है। सेकंड जो इसका फेलियर था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि हीट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू वर्क। अगर इसको मैं एक एग्जांपल से समझें तो एक फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है और सडनली हमने उसको रोटेशन उसकी बंद कर दी, तो क्या होगा, फ्लाईव्हील धीरे धीरे रेस्ट पर आएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू फ्रिक्शन फेस, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन फेस बाय बॉल बेरिंग फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उस फ्लाईव्हील की वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाया था कि वो रेस्ट पर क्यों आ रही है, क्यों नहीं उसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रही। उसके पास इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं था कि वो रेस्ट पर क्यों आ रहा है। फिर आगे फर्दर थ्योरी आती गई, नए लॉज आते गए, तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन आई। पर जब फर्स्ट लॉ को डिस्कवर किया था, फर्स्ट लॉ की थ्योरी आई थी, उस टाइम इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं था। और जो थर्ड लिमिटेशन है, इट फेल टू जस्टिफाई द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए परपेचुअल मशीन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। A device that can undergo cyclic operation and capable of absorbing heat from a reservoir and converting into work is completely into work is called a perpetual machine of second order। तो जो ये फंक्शनिंग है कि टोटली हीट लेकर रेजर्वायर से उसको वर्क में कन्वर्ट करना, ये फर्स्ट लॉ इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो चीज़ें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं एक्सप्लेन हुई थी वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन कर दी। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके लिए दो तीन साइंटिस्टों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी है, पर जो उनकी इक्विवेलेंसी है वो एक ही है, कि वो एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं। जो कैल्विन साइंस की जो स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या थी, उसने कहा था कि बिना किसी मटेरियल एजेंसी के इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिराइव मैकेनिकल इफेक्ट फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ मैटर by cooling it below the surrounding or the coldest surrounding। कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हम किसी सिस्टम में उस लेवल तक हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कि उस सराउंडिंग से भी कूल हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जो समुद्री शिप है अपने, उनको ऐसा पॉसिबल होता जो अपने शिप है उनको रन करवाने के लिए हम ओशियन से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेते। तो ये कैल्विन स्टेटमेंट। फिर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट क्या थी, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।
जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट थी उसमें क्या कहा था कि एक ऐसे हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन which working in complete cycle will produce no effect other than absorption of heat from a heat reservoir and converting it completely into work. Means कि no heat engine have efficiency 100%. जो थर्ड स्टेटमेंट थी क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by external agency to convey heat from one body to another which is at higher temperature. इस क्लॉसियस ने कहा था कि भी कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन है किसी मशीन या डिवाइस की हेल्प के बिना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जो कि हाई टेम्परेचर पर है हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती. उसको किसी ऐसे सिस्टम की हेल्प लेनी होगी जो इस काम को कर दे. तो ये क्लॉसियस स्टेटमेंट थी. अब हमने जो दोनों स्टेटमेंट दिए कैल्विन और क्लॉसियस ने, उसकी इक्विवेलेंसी को जस्टिफाई करेंगे. और उसके लिए हमने सपोज कर लिए दो सिस्टम 2 जो हाई टेम्परेचर पर है, इसको सिस्टम 2 कह दिया, और सिस्टम 1 जो कि लो टेम्परेचर पर है. हमने दो डिवाइसेस जिनको R और E से मार्क किए हैं, दोनों को कनेक्टेड कर दिया, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 से. R और E दो डिवाइस है, दोनों को सिस्टम S2 और S1 दोनों सिस्टम से कनेक्ट कर दिया. जो सिस्टम 2 टॉप सिस्टम वो हायर टेम्परेचर पर है, जो S1 जो सिस्टम है वो लो टेम्परेचर पर है. और ये अज्यूम कर लिया कि जो R डिवाइस है वो लो सिस्टम से Q1 हीट लेकर हाई सिस्टम Q2 हाई सिस्टम S2 को Q1 हीट दे रहा है. और जो E डिवाइस है, जो R डिवाइस है वो जो S1 सिस्टम है लो टेम्परेचर उससे Q1 हीट ले रहा है, और जो हाई टेम्परेचर पर सिस्टम है S2 उसको Q1 हीट दे रहा है. यहाँ पे किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प नहीं है, सेल्फ एक्टिंग डिवाइस है जो लो से हाई टेम्परेचर पर हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है. तो यहाँ पर जो क्लॉसियस स्टेटमेंट थी वो वायलेट हो रही है कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. और जो ई डिवाइस है वो Q2 हीट सिस्टम S2 जो कि हाई टेम्परेचर है उससे ले रहा है, और W वर्क डन बाय द ई डिवाइसेस, और जो रिमेनिंग हीट है जो कि Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस W, Q2 माइनस W वो S1 को दे रहा है जो कि लो टेम्परेचर पर है. ई डिवाइस ने S2 से Q2 हीट ली, W वर्क डन किया, और जो Q2 माइनस W हीट है उसको हमने Q1 कह दिया, वो S1 को दे रहा है.
अब दोनों डिवाइसेस को हमने कपल कर दिया और ये एक एक्स्ट्रा एजेंसी की तरह एक्ट कर रहा है कि S2 जो हाई टेम्परेचर पर है वो Q2 हीट ले रहा है और W जो सेल्फ एक्टिंग, ये जो एनिमेंट एजेंसी है वर्क कर रही है और रिमेनिंग S1 को दे रही है, जो रिमेनिंग है वो S1 को दे रही है और S1 से S2 को Q1 हीट जा रही है। Q1 जो हीट है, जो Q2 हीट है वो Q1 से ज़्यादा है। तो अगर ये प्रोसेस बाय साइकिल चल रहा है तो जो S2 है उसकी धीरे धीरे क्या है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है क्योंकि Q2 हीट इज़ ग्रेटर देन Q1, उसको मिल कम रही है, जा उससे ज़्यादा जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेज आएगी इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ क्या होगी, कैल्विन स्टेटमेंट। कैल्विन्स ने क्या कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल by means of any inanimate agency to derive mechanical effect, means to derive the work from any portion of matter by cooling it below the temperature of coldest surrounding। तो यहाँ पर दोनों ही क्लॉसियस स्टेटमेंट भी वायलेट होगी और कैल्विन स्टेटमेंट भी। तो इट मीन्स जो कैल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो दोनों इक्वल है, दे आर इक्विवेलेंट।